ग्रेविडा से शुरू होती है और 10 जो है वो स्टैंडर्ड जो हर एक के लिए एप्लीकेबल है, इंडिकेशन फॉर सर्जरी सेक्शन। ये आप पढ़ लीजिए, फिर अगले वेडनेसडे को आप मुझे बता दीजिए उसकी क्या आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो आज हम चलते हैं यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स पे। यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स मेरा ख्याल है बच्चों के 10 मिनट ज़ाया हो गए, हम वो मेरी ब्रीफिंग छोड़ देते हैं। यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स आप सबको आता है, केस से ही शुरू करते हैं। पिछली दफा मजलीफा थी और इकरा थी, ये 2 वॉलंटियर थी, वो हैं उनमें से कोई? सर इस केस के लिए मैंने वॉलंटियर किया था, डॉक्टर लुबना। लुबना, चलो लुबना से शुरू कर लेते हैं। लुबना, आपका केस है एज 42, पैरा 3, complaints of something coming down या उसका एक something coming out of vagina, and she has difficulty in initiating micturition। ठीक है, मैं फिर दोहरा देता हूँ स्टार्ट करूं? जी, 1 मिनट मैं दोहरा दूं बाकियों के लिए। एज 42, पैरा 3, comes to the outpatient complaining, number 1, something coming out of vagina, number 2, difficulty in initiating micturition। जी, Sir, after mutual introduction, I will inquire from the patient about her educational status and her occupation. Then, as I will inquire her. ऐथे रुक पूरी, ऐथे रुक। आज की इस डिस्कशन में उसकी एजुकेशन और प्रोफेशन का कोई प्रोफेशन का शायद हो सकता है, एजुकेशन का क्या दखल? Sir, because after history and examination, I have to consult the patient, and if my patient is educated, then it will जी be नहीं, easier for आपने me to सवाल consult पूछा, her. आई विल इंक्वायर हर एजुकेशन एंड प्रोफेशन। एजुकेशन Sir, का क्या occupation. है? ऑक्यूपेशन। Sir, चलो, occupation. एजुकेशन का क्या ताल्लुक है इससे? Sir, it will help me later on for the counseling of my patient. If my patient is educated, it will Does it easier for matter? me to. ना, ठहरो ठहरो, ऐसे ही आप खामखा आप एक लाइन खींच रही हो कि आपकी काउंसलिंग Okay. एजुकेटेड से और अनएजुकेटेड से फर्क होती है। सर मुझे ये काउंसलिंग लगा कि अगर पेशेंट वो होगा तो शायद मुझे उसको समझाना लगा इजी नहीं, होगा। ये बताइए मुझे सवाल का ठीक जवाब है सीधा सर। दीजिए। डज योर काउंसलिंग डिफर के कोई एमए पास आई है और कोई मैट्रिक पास आई है? नहीं सर। काउंसलिंग का मतलब आपने तो उसकी जुबान में समझाना है उसको। ठीक है, तो ठीक है सर। अननेसेसरी सवाल ना पूछें। मैंने कहा फोकस ठीक है, ऑन टू द हिस्ट्री गिवन। चलो मैं दोबारा शुरू ओके करता हूँ दोबारा। चलिए जी। ओके सर। आफ्टर सर म्यूचुअल आई विल इंक्वायर her about after mutual introduction. I will inquire her about the occupation. Then I will inquire her from how long she has this mass. Either the mass stay outside throughout, or she has to manually reduce the mass before the urination and defecation. Then we'll inquire about any history of backache, dragging sensation. As she has complained of difficulty in initiation of urination, I will inquire about other symptoms of urinary complaint. Will inquire about history of frequency, urgency, burning maturation, urge incontinence, feeling of incomplete evacuation, and stress incontinence. Then, any history of abnormal vaginal discharge or bleeding, any history of dyspareunia, and then will rule out the risk factor by inquire her about history of chronic cough, constipation, and feeling of mass in abdomen. Sir, then I will inquire her either this is affecting her quality of life. You are doing very well. Add colleague, any chronic cough or weightlifting? Any chronic cough and weightlifting. Then
I will inquire either this complaint is affecting her quality of life and any treatment she has taken up till now. As he is para 3 regarding past obstetrical history, I will inquire her about mode of delivery, difficult delivery, instrumental delivery, any prenatal tear, macrosomic baby, and manual removal of placenta. Then we'll take her past gynecological history, medical, surgical history, family history, and then social history. Good, very good. Go on. Thank you, sir. यही बात पूछने थे आपने सवाल एग्जैक्टली ये सवाल पूछने चाहिए जो सुन रहे हैं वो सुन ले चलें आगे नेक्स्ट Thank you. Sir, then I will move towards the examination of the patient. We'll check her weight and height and calculate the body mass index. And then we'll do the general physical examination of the patient and then abdominal examination for the presence of mass. Then maintaining the privacy of the patient, I will do pelvic examination. First in the dorsal position with the sim speculum and later on in the left lateral position. In the dorsal position, starting from the inspection of the vulva vagina for the presence of any abnormal bleeding, discharge, either the cervix is also lying below the introitus or not, presence of any ulcer, keratinization, and then will palpate the mass for the degree and type of prolapse. Will reduce the mass to check for the cystocele, rectocele, and will perform the cuff stress test provided that the bladder is full. Then I will do the bimanual examination for the size of the uterus, tenderness, consistency, and adnexial pathology. And then examination in the left lateral position to demonstrate the presence of enterocele. To demonstrate what? The enterocele. And नजर आती है कैसे स्पेकुलम से जी सर सिम स्पेकुलम से जब हम पेशेंट की एंटीरियर वेजाइनल वॉल को वो स्पेकुलम डाल लिया आपने फिर क्या नजर आएगा Sir, first I will retract the anterior vaginal wall with the sponge holding forceps, and then the sim speculum will retract the posterior vaginal wall, and I will ask the patient to cuff. If I feel a bulge at the tip of the sim speculum, then it means that the patient is having enterocele, and then I will retract the sim speculum and the sponge holding forceps out of the vagina and ask the patient to cuff and retract the speculum out of it, and then we'll check either the presence of rectocele in the lower part or not. Very good. Mashallah, you are doing excellent. Thank you, sir. And sir, after examination, I will do the investigation. First, the basic health profile of the patient. Service में add कर लीजिए. If she didn't have pap smear, I'll avail opportunity to take pap smear. Okay, ठीक है. Thank you, sir. And if the patient is? क्योंकि ये हर एक में कहना होता है आपने. ठीक है. Thank you, sir. ठीक है. हाँ, चलिए. हो गया. And then investigation. Let's say basic health profile. Tell me various classifications or degrees of prolapse. Sir, according to Beacom's classification, the first degree of prolapse is when the leading part of the prolapse is above the introitus. In the second degree, the leading part of the prolapse is below the introitus, and in the third degree, according to Beacom's classification, we have a procedentia. While in case of a जी चलते जाइए. ठीक है. Then sir, I will proceed towards the investigation. Sir, आप मुझे इसकी finding देंगे? Examination finding. Let's presume this is third degree uterovaginal prolapse. Sir, according to Beacom's classification, this is third degree? Yeah, well, recent. Then, sir, then I will proceed to the investigation, starting from the basic health profile of the patient for general well-being, then midstream urinary analysis for pus, protein, and sugar, and then I will pelvic examination for size of the. हो गया ना वो सब कुछ कर लिया आपने.
Or sir, pelvic ultrasound in investigation, I need basic health profile of the patient and then midstream urinary analysis for pus, protein and sugar. And pus Then cells. pelvic ultrasound. And pus cells. And pus cells. And then pelvic ultrasound for uterine size. And then endometrial blood flow, regularity, myometrial echogenicity, adnexial, any adnexial pathology. No abnormality except then, except third degree uterine collapse. Move on. हमारे पास टाइम थोड़ा है. वो पड़ा हुआ जी सर. And then sir, ultrasound kidney, urinary bladder for status of the ureter and the kidney. हो गया ना, सब कुछ हो गया. हो गया, ठीक है. Nothing abnormal. Okay. So then I will manage my patient. First, I will consult the patient that she is having that all her symptoms, her mass that is coming out of the vagina and her difficulty in initiation of urination is due to her mass. And this is a third degree uterovaginal prolapse. I will consult the patient that this is a benign condition and treatable condition. And then I will ask her for lifestyle modification, starting from the lifestyle modification that she should avoid the sitting in the squatting position, lifting of heavy weight, and then weight reduction. And sir, पेशेंट को प्रोसिडेंशिया है तो अब हम इसको कीगल एक्सरसाइजेस तो नहीं बताएंगे ना? इसको प्रोसिडेंशिया कहोगे? नहीं सर, थर्ड डिग्री प्रोलैप्स है ना, तो हम इसमें कीगल एक्सरसाइज. प्रोसिडेंशिया कहा इसको सर, वो मेरे स्लिप ऑफ टंग हो गया, आई एम सॉरी. हाँ, कहिए, ऐसे ही बोलिए. अगर हो जाए तो ऐसा ही बोलिए जैसा आपने बोला कि इट वाज स्लिप ऑफ टंग, आई डिडंट मीन दिस. फिर उसको करेक्ट. ठीक है. एंड शी इज हैविंग थर्ड डिग्री UV prolapse. After lifestyle modification, I will consult the patient that either she about her wish of fertility, either she wants to have her fertility desire, then I will give her options. Sir, if the patient's family is complete, then I will give her my first option, that is the surgical options in the form of a vaginal hysterectomy and anterior and posterior repair. And if the patient asks for conservative option, then I will give her option of pessary. And I will also tell about the pro. वो पहले बोलना. जी सर, ठीक है. कंजर्वेटिव पहले होता है, ऑपरेटिव बाद में होता है. ठीक है. सर, मैं इसको रिपीट करूं? हाँ जी, कर दी. जी सर. Sir, I will consult the patient about the diagnosis that she is having third degree uterovaginal prolapse, and the cause of prolapse is her vaginal deliveries. And then I will also vaginal deliveries, and then I will give add कर दी. Cause of vaginal delivery से हो गया. ये तो नहीं होता ना. नलिप्रस prolapse नहीं होता. जी सर, सर इस केस में तो उसकी vaginal deliveries थी ना, तो फिर सर और हिस्ट्री में अगर that doesn't mean that is the cause. Okay, ठीक है सर. weakness of tissues हो सकता है. cause उसको abdomen में कुछ था, हम तो डिटेल में गए नहीं है. जी सर. Don't say the cause is delivery. ये कह सकते हो if she had difficult deliveries, possibly that was the cause. फिर भी पक्का नहीं. जी, ठीक है. तो सर हम सिर्फ ये कहेंगे I will consult. हाँ, क्या I will counsel her that she has got third degree uterovaginal prolapse. Third degree uterovaginal prolapse. And she needs treatment, which could be conservative or operative. Which could be conservative options and which could be surgical options in the form of a vaginal hysterectomy, anterior posterior repair, and then the mecaldoplasty. तो इसके साथ वो पहले आपने बोला था, आप बोलिए कि provided she has completed her family. Provided she has completed her family. Family and she is willing for hysterectomy. And she is willing for hysterectomy. Very good. Suppose she doesn't. Thank you, sir. बहुत सारे हमारे मरीज हैं. Let's say if she is in 35, 36, para 3 भी है, फिर भी she doesn't want hysterectomy. फिर क्या करोगे? Sir, then I will give her option of Manchester repair if she wants to conserve her uterus. And then
Sir, other option of sacrohysteropexy option is also there, but my first option is Manchester repair. चल, वेरी गुड, माशाल्लाह। क्या नाम आपका जी? Sir, Dr. Lubna. लुबना, कहाँ से बोलना? Sir, Rahimia Khan. ओ माशाल्लाह, माशाल्लाह। भाई आज जिन्होंने ये केस डिस्क्रिप्शन आपने सुनी है, इसको बिल्कुल आइडेंटिकल सिचुएशन समझो इम्तिहान की, और इसी तरह आपने बोलना है, इसी तरह बोलना है जिस तरह ये लुबना ने जवाब दिया। देखा कहीं पे ये सब आपको आता है, कहीं पे कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं, आप पास, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। यही आप अपने अस्पताल में करती हैं, अपने मरीजों के साथ जो आते हैं तो उसको एग्जैक्टली ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं। पता नहीं इम्तिहान में क्या हो जाता है, खाम खाप इधर उधर जाने लगते हैं। ये भी तो जाने लगी। जी सर। लेकिन remain focused on to the history given to you, on the facts or features told, उसी पे आप फोकस कीजिए। आप ऐसे काम का वो फैमिली हिस्ट्री और पता नहीं क्या क्या घूमते रहते हैं, वक्त जाया करते हैं। लुबना, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो जी, हु इज द नेक्स्ट वॉलंटियर? वही तो बोलो, कमाल करते हो। सर मैं प्रेजेंट कर दूं? आप है नाजिश, कहाँ से बोल रहे हैं? सबसे पहले डॉक्टर तस्मिया है सर। हाँ, डॉक्टर तस्मिया। डॉक्टर सफिया तस्मिया। अस्सलाम वालेकुम सर। तस्मिया, आप तस्मिया कहाँ से बोल रही हैं? सर इस्लामाबाद से। चलें, अगला पेशेंट है आपका, पेशेंट एज 20, unmarried, complains of something coming out of vagina. ओके सर। आसान सर आप जी, हाँ जी। Sir, after mutual introduction and confirmation of the information provided to me, I would like to ask my patient about the duration of symptoms and whether it is worsening with time, and associated symptoms of urinary complaints like associated urinary complaints, bowel complaints, and any vaginal discharge or vaginal bleeding. And I will ask her about regularity of the cycle, her last menstrual period, and pain associated with this symptom, any dragging sensation, and family history of such problem in her sisters or mother. And sir, any known feeling of abdominal mass or any feeling of abdominal एक मिनट तस्मीर जी सर। जब आपने कहा ना मैं फैमिली हिस्ट्री पूछूंगी, मैं समझा ये कि आपने पेशेंट की हिस्ट्री तो कंप्लीट कर ली है, अब फैमिली पे गई हैं, फिर पास पे जाएंगी, फिर ये होगा। वेयर एज फैमिली हिस्ट्री ऑफ पूछ के फिर वापस आ गई, आप ऐसा नहीं करें। जी सर। पहले जो पूछ रही हैं उसकी पर्सनल हिस्ट्री वो सारा मुकम्मल कीजिए, फिर दूसरे जो सवाल है वो पूछिए। मैं ओके आपको फिर दोबारा ले चलता हूँ, हमारा टाइम फिर मैं देता हूँ। चलो, ये पेशेंट है एज 20, नलीपरस है, अनमैरिड, और शी कंप्लेन्स ऑफ समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना। अब ओके सर।
Okay, sir, I will ask my patient about her duration of symptoms and any worsening of her symptoms, associated symptoms like urinary symptoms, bowel symptoms, any associated pain, dragging sensation, or dragging sensation, and sir, any complaint of bleeding or discharge, and I will ask her about how the problem is affecting her quality of life, and what any consultation, previous consultation done for this complaint, and any history of joint pain or joint pain, and any family history of a similar problem in her family, any past medical. आपने पिछली दफा तो एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछी थी, ब्लैडर की, बाउल की, इस दफा नहीं पूछी। सर पूछिए ना, सर, इस दफा नहीं, पिछली दफा पूछी। अच्छा सर, चले चले। Sir, any past medical or surgical and any allergy to the drugs and socio-economic history of the patient. Then I will move towards the examination. That is, sir, her BMI. आप इस दफा फिर फैमिली हिस्ट्री वो सारा कुछ भूल गई, वो नहीं पूछनी? Sir, family history of a similar problem in her sister or in her mother, or family history of. ये आपने इस दफा नहीं पूछा, इस दफा पूछा। चलो जी sir. So then I will move towards the examination of the patient, including her BMI, especially weight of the patient, and her vitals, and any sir, positive physical findings on her general physical examination, chest, cardiac, and respiratory examination, and her own abdominal examination. So, sir, then I will move towards the local examination. Sir, as my patient is unmarried, so I will inspect the vulva and vagina, vulva for any visible mass on the introitus. And any visible mass on the introitus. And sir, I will part the vulva, and if the patient bladder is full, then I would like to demonstrate any urinary incontinence. Do you think it likely है कि वो full होगा? No, sir. Sir, for examination purpose, I would like to तो demonstrate ये incontinence. उल्टा कहिए कि इस वक्त तो उसका ब्लैडर एम्प्टी है, जो कि पेल्विक एग्जामिनेशन से पहले हर पेशेंट का एम्प्टी किया जाता है। अलबत्ता ये एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद मैं उसको कहूंगी ब्लैडर फुल करो, फिर बताओ, ये कहें, ये है फिक्रा। जी सर। चले सर, अब ये तो अनमैरिड है, तो इसमें तो हमने एग्जामिनेशन नली पेरिस भी है, अनमैरिड भी है। अच्छा, अनमैरिड में क्यों नहीं एग्जामिनेशन करते हो? अनमैरिड में क्यों नहीं एग्जामिनेशन करते हो? कोई वजह होगी, बोलिए, कोई बोले। सर हाइमिन की वजह हो सकती है, वर्जिनिटी के लिए सर। We don't want to injure hymen. आप वजह होगी नहीं है तो वर्जिनिटी के लिए सर नहीं करते। पाकिस्तान के कल्चर में इंटैक्ट हाइमन एट द टाइम ऑफ मैरिज को बड़ा कंपल्सरी समझा जाता है, और अगर हस्बैंड को पता लगे कि हाइमन इंटैक्ट नहीं था, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ सोशल इश्यूज। तो इसीलिए हम उस सोशल इश्यूज का हिस्सा नहीं होना चाहते कि हम हाइमन की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, लेकिन जो भी हो हम उसको इंजर नहीं करना चाहते, ये वजह है। लेकिन एनी पेशेंट जिसमें इतना बड़ा मैस बाहर आ रहा है, डू यू थिंक कि उसका हाइमन इंटैक्ट होगा? Yes. नहीं सर, नहीं होगा। That's No, why sir, we नहीं will do होगा। examination of. ये कहिए, फिर ये इतना कहने पे ही आप पास हो जाएंगी, बाकी की डिस्कशन होगी ही नहीं। कि although in unmarried
girls, we don't do pelvic examination because of hymen. But in this case, because the mass is coming out, so it must have torn or injured the hymen. इसलिए इस केस में we are not going to do any damage. So you can do, obviously after proper consultation, you can do pelvic examination. ये सारी बात ऐसे बोलेंगी और कोई नहीं बोलेगा, आप बोलेंगी, आप पास हो जाएंगे. सर फर्स्ट और सेकंड डिग्री में करेंगे एग्जामिनेशन? नहीं, फर्स्ट और सेकंड मैंने क्या बोला, समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना. व्हाट डज दैट मीन? एटलीस्ट थर्ड डिग्री. सर आउटसाइड होगा तो फिर हम कर लेंगे एग्जामिनेशन, अगर इनसाइड होगा तो फिर नहीं करेंगे. इतने बड़े मैस जो है, सर्विक्स जो है, और उसके ड्रैगिंग डाउन, वो इस सर्विक्स का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है जो नॉर्मल पीनस का होता है ड्यूरिंग इरेक्शन. तो अगर वो बाहर आ रहा है तो, और रिपीटेडली बाहर आ रहा है, तो वो जो उतना बड़ा होल हाइमन में तो ऑलरेडी है. तो इसलिए ये लफ्ज बोल के इतना बड़ा फिक्रा आप एक प्लस पॉइंट स्कोर कर रहे हैं जो आम नहीं कहेगा. तो आपने ये बोलना है कि although she is nulliparous, but because something is coming out of vagina, बल्कि उसका तर्जमा बोलिए, at least it is third degree, would be fourth degree as well. At least it is third degree uterovaginal prolapse, hence the hymen could not be intact or it cannot remain intact. चलें आगे चलें. फिर ये थर्ड डिग्री यूट्रोवाजिनल प्रोलैप्स है. आगे चलिए, टाइम थोड़ा रह गया. हाँ जी. फिर क्या sir, then examination of the mass, sir, inspection for any presence of any ulcer or any bleeding, discharge. लेकिन वो फिक्रा पूरा बोलिए, अदरवाइज आपको एग्जामिनर फेल कर दे. वो फिक्रा पूरा बोलिए. In this case, third degree prolapse, hymen is unlikely to remain intact, and मैं कर सकती हूँ उसका एग्जामिनेशन. Sir, although my patient is unmarried and she is nulliparous, but as she is complaining of something coming out of vagina, so I would like to perform her pelvic examination. Sir, on inspection, I will. Because भी बोलिए ना. Because the hymen because this examination will not lead to her rupture of membrane, and this mass has already caused her rupture of hymen. membrane का लफ्ज कौन सा? चल फिर आगे चलो. So then I would like to check for any bleeding, discharge, any presence of ulcer, and then I will palpate the mass, and then I will examine my patient in left lateral position for any rectocele, and also I will see for the cystocele in dorsal position. आप लेफ्ट लैटरल फिर डॉर्सल उसी तरह बोलिए जैसे आपसे पहले डॉक्टर क्या नाम था उनका, लुबना ने बोला. पहले dorsal position. Sir, in dorsal position, I will examine my patient for any presence of any discharge, bleeding, ulcer, and I will look for any cystocele. अल्सर का सही नाम बोल देंगे तो आपके लिए स्कोर अच्छा हो जाएगा. Look for any presence of any decubitus ulcer. हाँ ये बोलिए. Sir, its size, margin, shape, and base of the ulcer. Good. And any bleeding present. Then, sir, I would like to examine my patient. I will palpate the mass, and then I will examine my patient in left lateral position for any presence of any rectocele. So then I will move. Enterocele भी बोल दिया. So then कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप? Sir, sim speculum for examination. Why not Cuscos? Sir, because
कस्कोस स्पेकुलम में तो सर वो डिमॉन्स्ट्रेट ही नहीं होगी, सिम स्पेकुलम के साथ डिमॉन्स्ट्रेट हो ना, क्या नहीं डेमोन्स्ट्रेट होगी कस्कोस का? सर रेक्टोसील हम्म, विथड्रॉल इज रेक्टोसील तो सिम्स के साथ भी हो सकता है कवर हो जाए। लेकिन सर वो हम विथड्रॉ करते हैं ना, सिम स्पेकुलम को विथड्रॉ करते आते हैं और फिर साथ हम उसको देखते हैं। इसको भी विड्रॉ कर लीजिए बाबा। कस्कोस के 2 ब्लेड हैं। एंटीरियर ब्लेड जो है वो सिस्टोसील को कवर करता है, तो इसीलिए सिर्फ सिम्स इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो सारी एंटीरियर वजाइनल वॉल और साइड्स आपको विजिबल रहें। कस्कोस में तो सिर्फ आप एक्चुअली देख सकते हैं सर्विक्स को, इसलिए so Cuscos is not used for uterovaginal prolapse because the blades of the speculum cover both anterior posterior vaginal walls and they are not visible. So अगर cystocele होगी तो visible नहीं होगी आपको। जी सर। चलें सर आगे then चलिए। sir then investigations of the patient her वो baseline and subject pelvic ultrasound. हो गई आज। Sir then Okay. the How will you management of my manage? sir management of my patient sir I will as my patient is sir nulliparous and unmarried and she has this third degree uterovaginal prolapse, so I will discuss sir different treatment options, that is sir conservative management in the form of pessary and sir surgical management option. आपने और मतलब ना दोनों ने उससे पहले भी है ना, उसको एक्सरसाइजेस ये वो कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल हेल्दी मॉडिफिकेशन ने आपने एक्सरसाइज नहीं बताई, तो इसमें इफेक्टिव होंगी एक्सरसाइजेस थर्ड डिग्री यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स? जहाँ पे आप कंजर्वेटिव की तरफ जाते हो वहां पे फिर उसका ये है, पहले एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस और फिर उसके साथ पैसरी। और अगर आप सर्जिकल की तरफ जाते हो तभी मैंने लुब्ना को इतना वो मिस करने पे, उन्होंने मिस किया था लेकिन मैंने उस पे तो फिर भी उनको बात मार्क्स दे दिए थे, तो चूंकि वी वर रिमेनिंग फोकस्ड ऑन टू द पेशेंट। अब ये पेशेंट 20 ईयर ओल्ड है, इस आपने तो उसके जॉइंट पेन्स भी पूछ लिए थे, सब कुछ पूछ लिया था कि तो उसको मस्कुलर वीकनेस किसी और वजह से भी तो हो सकती है, न्यूरोजेनिक हो सकती है, स्पाइना बाइफिडा से हो सकती है, और उस तरफ हम गए ही नहीं। तो इस पेशेंट में जिसमें नलिपरस प्रोलैप्स हो खास तौर पर, तभी मैंने ये रखा है कि आपको ये सोचना है कि उसको मस्कुलर वीकनेस जो है उसकी वजह न्यूरोजेनिक तो नहीं है। न्यूरोजेनिक मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीजेस प्लस मैकेनिकल, और फिर उसको और कोई लाइक माइस्थेनिया ग्रेविस मस्कुलर डिजीज तो नहीं है। इस तरफ की एक्सप्लोर जरूर करनी चाहिए पॉसिबिलिटीज इन ए अनमैरिड गर्ल और नलिपरस प्रोलैप्स। जी सर। फिर आप आएंगे उसके कि जी उसका कोई नहीं है, लेकिन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ये जरूर बोलिए आप कि हम उसको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बताएंगे, बल्कि फिर आपको आना भी चाहिए, अगर एग्जामिनर पूछे वो कैसी एक्सरसाइज होती है वो भी बताना चाहिए आपको। आप में से किसी को आता है तो बोले। सर मैं बोलूं? जैसे कॉन्स्टिपेशन, जैसे पेशेंट अपने स्टूल को जैसे होल्ड करता है, कहीं पास नहीं करना चाहता, तो वैसे जोर लगाए। नहीं, स्टूल से ज्यादा जरूरी ब्लैडर है। आप किसी के घर जाए। सर मैं बताऊं? जी बता दीजिए, आप बता दीजिए। गीगल एक्सरसाइज होगा ना एक तो। Sir, I will counsel the patient that she has to apply pressure
on the perineal muscle, just like during traveling when she has a full bladder, but she has to hold the urine and she has to wait for the pass. Just like, and sir, I will consider that she has to do these exercises 3 times a day and 8 contractions in per sitting and for 3 months. Minimum 3 times. मैं तो अपने पेशेंट्स को जिसको कह दूं ये करो, मैं कहता हूँ हर घंटे बाद करो, क्योंकि इसके लिए कौन सा स्पेशल जगह पे आपने जाना, कहीं पे भी बैठे बैठे आप कर सकते हो। लेकिन उससे पहले जो आपने क्या नाम था जो अभी बोली, गीगर एक्सरसाइज जो जी, आप ये भी कहिए, फिर नंबर आपके अच्छे आएंगे, ये भी कहिए कि आई वुड लाइक टू टेस्ट द टोन ऑफ हर लिवेटर ani। कैसे करेगी टोन टेस्ट? वो फिर 2 उंगलियां वजाइना में डाल के, क्योंकि हमने फैसला कर लिया इस पेशेंट का पीवी हो सकता है, 2 उंगलियां वजाइना में डाल के आप उसको कहेंगी कि आप वही जो आप कह रही हैं, अपने आप को टाइटन करो योर पेल्विक फ्लोर, यही होल्डिंग योर यूरिन, और फिर देखेंगी उसकी टोन लिवेटर ani की क्या है, उसको ग्रेड किया जाता है 1 2 3 4 5। तो 5 इज मैक्सिमम टोन, 1 इज मिनिमम टोन। तो फिर मैं उसके मुताबिक उसको बताऊं। ऐसे बोलेंगी तो फिर आपको 7 नंबर मिल जाएंगे, 6 सर की बोनी बजाय। टेस्ट क्या होता है इसमें? सर इसमें हम बोनी टेस्ट करते हैं। हाँ, बोनी टेस्ट तो वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का टेस्ट था, तो यस वो इसका टेस्ट नहीं है। इसका टेस्ट तो ये है कि जो टोन टेस्टिंग बाय पुटिंग माय 2 फिंगर्स at the level of लिवेटर ani का लेवल क्या होता है, मिडिल मार्जिन किस लेवल पे होता है, आपको ये पता होना चाहिए। वो हाई अप इन द वजाइना होता है, तो इसलिए आपकी उंगलियां हाई अप 3 सेंटीमीटर उससे ऊपर होनी चाहिए, क्या एक्सटर्नल यूथरल मीटर्स, तो ऊपर वहां पे उंगलियां रख के फिर कहूंगी पेशेंट को कि टेस्ट करो, फिर वो उसकी टोन टेस्ट करके आप कहिए कि उसके ग्रेड्स हैं 1 to 5, 1 इज मिनिमम, 5 इज मैक्सिमम, तो फिर मुझे अंदाजा हो जाएगा कि हाउ इफेक्टिव द एक्सरसाइज आर गोइंग टू बी। इस तरह से बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे आप। ये डॉक्टर तस्मिया आप दोबारा बोलो कि वो सारा एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? Sir, as my patient is nulliparous and unmarried, so I will discuss with my patient option of conservative management. In conservative management, I will counsel her about pelvic floor exercises and also, sir, avoidance of the risk factors. गुड, वेरी गुड, ऐसे बोल। जी सर। और फिर इफ नेसेसरी पैसिव ट्रीटमेंट। यस सर। वो भी कर, लेट्स से कि वो पैसिव नहीं चाहती, शी इज अनमैरिड, शी रिफ्यूजेस टू हैव एनी ट्रीटमेंट लाइक पैसिव, फिर क्या करेंगे आप? Sir, then she can have uterine preserving surgeries like sacrohysteropexy. हाँ, laparoscopically ऐसा बोलो, laparoscopically conducted suspension, ये Yes, बोलिए। sir. Sir, I will give my patient the option of laparoscopic assisted sacrohysteropexy. हाँ बस, वेरी गुड। अब तीसरे केस के लिए तो है 5-7 मिनट। एनी वॉलंटियर? सर मैं करती हूँ, सर मैं करूँ? डॉक्टर शकीला। शकीला जी आप सर। कहाँ से बोल रही हो? सर रहीम यार खान से। ये रहीम यार खान वाले बड़े तेज हो गए। सर आपके लेक्चर सुनते हैं ना? वेरी गुड, माशाल्लाह। आपका जो भी सुपरवाइजर है आपको अच्छा ट्रेन कर रहा है, माशाल्लाह, तो क्रेडिट टू योर सुपरवाइजर्स। चले, एक पेशेंट आपके पास आई, शी इज 35 year old,
para 2 complains of something coming out of vagina and heavy menstruation. Sir, after greeting mutual introduction, confirming the details, giving in the scenario, inquiring about missing data, take focused history. I will inquire about duration of the symptoms and duration of increase in symptomatology. The mass comes outside all the time or comes on the cuffing or weightlifting or prolonged standing and goes lying out inside. When she lies down, goes in spontaneously inside or need manually reduction. Any associated lower abdominal pain, dragging sensation, backache, vaginal discharge, bleeding, any urinary or bowel complaints, any risk factor for this like weightlifting, constipation, coughing, and a feeling of abdominal mass and her fertility desire, any workup for this problem done in the form of pessary or surgical management, and any history of I will inquire about her last child born duration and parity. Parity is already given, and any history of prolonged labor, shoulder dystocia, macrosomia, instrumental vaginal delivery, perineal tears. Then I will also inquire about gynecological history, medical history, surgical, family, and any smoking reduction and socioeconomic support of the patient. Then I will also inquire about her last menstrual. I will also inquire about her last menstrual period and whether cycle regular, irregular, and I will also inquire about her previous cycle and any history of postcoital bleeding, intermenstrual bleeding, and current cycle. And in current cycle, number of days of bleeding and pads use and any postcoital intermenstrual bleeding. सर ये मिस किया था मैंने heavy menstrual bleeding का. आप Then फेल हो गए, आप बुरी तरह फेल हो गई. How sad. समझ आई आपको क्यों मैंने फेल कर दिया? वही बातें जो आप दो बाकी उन्होंने कहीं और मैं उनको 7-7 नंबर देके पास कर रहा था, आपको फेल कर दिया. सर इसमें साइकिल का पूछना, वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मैंने स्टार्ट में ही पूछना था. पूछना था. बाबा कमाल करती हो, कमाल करती हो. समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाना किसी को इतना बॉदर करता ही नहीं है. मोस्ट 50% पॉपुलेशन को यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स होता है, लेकिन ऑपरेशन के लिए तो 10% भी नहीं आती. Because they put up with this कि कोई बात नहीं, इसमें पेन नहीं होती, कुछ नहीं होती. वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए तो बेशुमार मरीज हैं जिनके आप हीमोग्लोबिन करते हैं 12-13 ग्राम होती है, लेकिन वो बार बार कहती है मेरे पीरियड बड़े हैवी हैं. इसके लिए पेशेंट बड़ी जल्दी आती है और वो आपने भूल ही गई. मैंने जानबूझकर ये तीसरा केस इस तरह रखा था, जानबूझ के रखा था, क्योंकि इम्तिहान में आपके साथ यही सलूक होता है. एक छोटा सा पॉइंट बीच में डाल देते हैं, आप यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स सब कुछ बता दिया. अगर मैंने ये ना डाला होता आपके भी वही 6-7 नंबर आ जाते. अब मैंने आपको फेल कर दिया और सही हुआ है. इम्तिहान में ऐसे ही होता है. आप कहते हैं मेरा टॉक सेशन तो बड़ा अच्छा हुआ था मैडम, मैंने सबको बता दिया, मैंने ये भी बता दिया, वो भी बता दिया, फिर मुझे फेल क्यों कर दिया? फेल इस वजह से कर दिया कि यू डिड नॉट फोकस ऑन टू द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. आप वही फैमिली हिस्ट्री वही सब कुछ कर कर करके थक जाते हैं. इस पेशेंट के जो she is bothered by heavy menstrual bleeding, not bothered by something coming out of, वो तो ऐसे कैजुअली बता दिया. इसकी डिटेल पूछनी थी कि अब तक
क्या कितनी रेगुलर है, क्या ब्लीडिंग होती है और क्या इलाज किए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप FCPS स्पेशलिस्ट हो, जब तक आप तक पहुंचती है उसने बहुत सारी ट्रीटमेंट हार्मोनल ले चुकी होती है। ट्रांसमीन तो हर एक ने खा चुकी थी, तो वो सारी HMB की हिस्ट्री लेनी थी आपने, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। पता नहीं, मैं तो कह के थक गया हूँ कि फोकस ऑन टू द हिस्ट्री गिवन टू यू। Yes, sir. कैसे कहूँ और कैसे कहूँ, हमारा आधा वक्त इस पे जाया हो जाता है। क्यों तस्मिया, आप तो शकील हो, आपको बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, वो बस सर आइंदा बहुत ज्यादा फोकस करूंगी। हाँ, जितने पॉइंट्स हैं वो सारे उस पर एक निशान लगा लीजिए, लिख लीजिए, उन सबको कवर करना है। यहाँ पे पेशेंट की उम्र थी इम्पोर्टेंट, समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना, और उसके साथ एसोसिएट कोई मैंने बात नहीं कही थी, और साथ ये कहा था कि उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। क्योंकि आज हम यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स डिस्कस कर रहे हैं, आपने यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स तो पूरा बोल दिया। सर could be a fibroid, could be a polyp. कोई पता नहीं उसमें फिर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का डिफरेंशियल डायग्नोसिस आएगा ना। सर उसकी अगर इसको वो आपने उस पर फोकस करना। सर अगर इसको सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स के साथ फाइब्रॉइड निकल आए तो हाँ, फिर किस तरह हम उसको मतलब ट्रीट करेंगे? पहले अच्छा हुआ आपने, बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट। पहले आपका जवाब ये होगा कि आई विल फाइंड आउट थ्रू अल्ट्रासाउंड फाइब्रॉइड का फीगो स्टेज 0 से लेकर ऊपर तक के कौन सा है। वो इन अदर वर्ड्स वो सब म्यूकस है, वो इंट्राम्यूरल है, वो सब सीरस है। Obviously, if the fibroid is subserous, वो कॉज नहीं हो सकती हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की, irrespective of its size, irrespective of its size। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो 1, 2 है और that means some mucus, वो छोटा सा फाइब्रॉइड भी कैन कॉज हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। सो उस छोटे से फाइब्रॉइड को भी हम निकालेंगे। आजकल के जमाने में आप कहेंगे हिस्टोस्कोपिकली, हिस्टोस्कोपिक सर्जरी, मायोमेक्टमी, पॉलीपेक्टमी, जो भी कहेंगे, तो ये बात कहेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो अगर आपने बोला इफ द पेशेंट हैज फाइब्रॉइड्स, आई विल आस्क माय सोनोलॉजिस्ट, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, to tell me the figo type of the fibroid। वो क्या है वो फिर आप बोलेंगी 1, 2, 3, 4, 5। और फिर अगर फिर ऐड करेंगे if it is figo 1, 2 or even 3, 3 is large, 1, 2 तो छोटा सा भी हो, पॉलिप भी हो, फिर भी रिमूव करेंगे हम। तो उसके मुताबिक उसको ट्रीट करो, बेशक डिटेल ना बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये जो आपने अभी सिनेरियो बताया था ना, सर हाँ यही वाला मेरे एग्जाम में ये केस आया था, हाँ जी जिसमें पेशेंट को HMB भी था और साथ में सेकंड प्रोलैप्स था, और HMB की कॉज जो थी एडिनोमायोसिस थी। जी पेशेंट को जो है तो वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाहती थी। हाँ, तो फिर क्या कहा आपने? सर इसमें जो है तो वेल ये सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स में तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पहले कहेंगे ना, कीगल एक्सरसाइजेस और अवॉइडिंग हैवी वेट लिफ्टिंग और कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा। और हाँ जी, HMB के लिए सर, HMB के लिए सर हम उसको मायरेना कह सकते हैं। आपके क्या होता है?
सर HMB के लिए हम एडिनोमायोसिस के लिए मायरेना उसको एडवाइस कर सकते थे। क्या कहते हैं HMB के लिए? सर मायरेना लीवर मायरीना। लॉस टैलेंट है यूट्रांस। मायरीना इज वन, तो ठीक है वो कही जा सकती है, लेकिन वो आप शुरू अगली दफा HMB ना कर लें। सर अगर वो डेफिनेटिव सर वो तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाहती थी ना, ये हाँ, कह रही है। उसी पे आने वाला। आपने सही पॉइंट आउट किया, आपने जी। बिल्कुल, नायला ने सही पॉइंट आउट किया कि जी सर, वो आपने बोला एडिनोमायोसिस डेफिनेटिव जो है ना डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सर, सर फिर हम उसको डायरेक्ट एक मिनट सर की सुन लो सर की सर फिर डायरेक्ट उसको हिस्टेरेक्टमी कर दो। ओ जी मेरी की बात सुन लो। सुनो, आप मेरी बात सुनने के लिए बैठे हैं, आपस में बहस बाद में कर। जी 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 सर जी। अगर पेशेंट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कहे तो आप फिर उसकी थोड़ी सी डायलेट कीजिए कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है। जी सर। तो डेफिनेट ट्रीटमेंट के लिए पहले क्वालिफाई भी करती है कि नहीं करती। मरीज तो बेशुमार कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो मर रही हूँ इससे, इसका इलाज करो, और लेकिन वो अनमैरिड है या नलीप्रस है, या पाकिस्तान में तो फर्टिलिटी इम्पोर्टेंट है, पैरिटी उसकी 1 या 2 है, एज उसकी 30 है, तो आप उसको हिस्टेरेक्टमी पे नहीं छलांग मारेंगे, नहीं छलांग मारेंगे। आप कहेंगे मैं उसको काउंसल करूंगी कि डेफिनेट ट्रीटमेंट मींस रिमूवल ऑफ द यूट्रस, बट इन योर केस you are young, your parity is not complete, your family is not complete, and I will not suggest hysterectomy for you. आज के इस लेक्चर में ये भी आप याद रखिए, जब आप स्पेशलिस्ट बन जाएं तो यंग पेशेंट 30-35 की हिस्टेरेक्टमी ना करें, चाहे पुलिस कहे भी, वो बाद में थोड़े गले पाए। सर लेट्स सपोज अगर एज ज्यादा ही है पेशेंट की, 45 तक है, पेशेंट विलिंग भी है, सूटेबल भी है, अगर वो 40 प्लस है, पैरिटी उसकी 1 या 2 ही है, फिर आप उसकी हिस्टेरेक्टमी करेंगे, क्योंकि उसके चांसेस ऑफ फर्टिलिटी आर वेरी लो। सर लेकिन एडिनोमायोसिस में तो यूट्रस काफी इनलार्ज्ड होता है ना, तो वो तो फिर सुन लीजिए, एडिनोमायोसिस का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मेडिकल कोई नहीं है, और उसका मायोमेक्टमी की तरह उसका वो एडिनोमा निकल भी नहीं सकता, तो सही इलाज तो उसकी हिस्टेरेक्टमी है। लेकिन जो आजकल UAE यूट्राइन एम्बोलाइजेशन एक पेशेंट ने करवाई थी, वो भी याद रखिए, और फिर एब्लेशन ऑफ एंडोमेट्रियम को भी याद रखिए। तो इस तरह से आप ये जो चीजें हैं इनका इस्तेमाल, जो ये कहा इम्तिहान में पूछा गया इनसे, उनका वो रेफरेंस भी देना चाहिए था। और सर फिर जी हेलो सर वो फिर साथ में ये भी पूछ रही थी, जब मैंने हिस्टेरेक्टमी की ऑप्शन दी ना, तो वो पूछ रही थी कि रूट कौन सा होगा हिस्टेरेक्टमी का, सेकंड डिग्री प्रोलैप्स भी है पेशेंट को। मैं आसान सा जवाब देता हूँ। If the size of the uterus is less than 12 weeks, I'll do vaginal hysterectomy. If the size is bigger than 12 weeks, then abdominal hysterectomy. Abdominal भी laparoscopic assisted hysterectomy will be preferable than conventional hysterectomy. इस तरह से बोलिए। मेरा ख्याल है मैं अगली दफा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बड़ा आम क्लिनिकली भी आता है, पेशेंट भी आता है, इम्तिहान में भी आता है। ये करा दें। चलो अगली दफा हैवी ये करवा दो। चलो हमने तो ठीक है, पूरा हो गया टाइम, मैंने 10 मिनट लेट शुरू किया था, लेकिन 10 मिनट ऊपर हो गए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप मेरी बात याद तो रखती नहीं। थैंक यू जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर आप याद रखेंगे थैंक यू सो मच सर। हाँ थैंक यू, याद रखो। चलो ऑल द बेस्ट। हेलो सर, आपसे एक बात करनी थी सर। जी बोलिए।